Sorry, yes, we are recording this session with your permission. Sorry, maybe there was some misunderstanding because I do job for 3 days and rest I am free. So I didn't want you to like force someone. It sounded like I kind of was pursuing it. Okay, so what's your status right now? Have you ever given PT before? Are you have an idea about it? You want to do it afresh? I think I have told you already. What you have told me actually. I've sent you my reports already. Actually, I'm going on with so many people conversation that if you don't mind, can you brief me more a bit more? I can send you my report if you want. Yeah. Okay. You can send it again. So what's your If like, you, huh? yes, okay, just hold on. I tag you again if you can see on Facebook Messenger. Okay. Just let me. Uh, would you share it again? Maybe I've lost it because I was downloading stuff. Okay, what's your Oh, desired score? my desired score is 80 each, 79 each. You're going for immigration. Yeah. And how much did you score before? I already have scored around 70, 77 in reading, and the rest of them were 80. Okay, so let's see, look at your blue lines now. Just let me share the screen with you. Uh, I can see where you have made the mistake. Don't worry, it's a free demo session. So, okay, if you look at your blue bars, number one is you haven't done good in speaking, extended speaking. The line is the screen visible? Yes, I can see it. So if you can see your blue line is or just around half, isn't it? The It's blue line, what? the blue line for see if you look here extended speaking it's just half. You are just gone you are half through with speaking, rest you weren't able to do it good. So maybe you made mistakes. Just tell me, were you using templates? Yes, I remember I made again mistake in the retail lecture because uh, the template I was using was a bit hard, and I always do practice at home and it's good, but while exam I always I get confused or nervous with the retail lecture. But I think the retail lecture it doesn't because in speaking I've been very good in speaking since starting because this is my third one because first I gave uh, in 2020 and that was in 2020 I got 90 in reading. Oh, sorry, in speaking I got 90. First one without any tutor, nothing. But the okay. second attempt was 83 and third attempt was 84 in speaking. Anyway, but I think there's something wrong in reading actually. No, it's not just reading. See, the line itself clearly says number one thing is that in 2020 uh, there was the thing was very easy. Whatever you said, you were able to score good. But now the problem is that, well, actually, it doesn't, it's not about the templates. People are crazy about templates, but templates is not everything. It's simple. See, if they are asking you apples and you are reading templates and you haven't mentioned a single thing about apples, you will not get marks. Before it was easy that whatever you was in the template, if you speak some stuff, you used to get marks. But then later on, it became more sophisticated, not advanced, but sophisticated. And if you need to have to say some keywords also, like relevant to Apple, if they are talking about Apple. With the passage of time, now the keywords are not working as such. They want phrases. So software needs you to talk more. So template, the words in the template is not the thing that they are looking for. They are looking for the relevant content. Okay. So if you're saying the Mhm. retail lecture, the template said that the speaker said, he also said that
it also mentioned that, but you are not saying anything about Apple, you will not get marks. So templates is just kind of a sample. It is just a structured way to start your talk and go through in the middle and end it, right? So the actual thing is that you have to provide the content. So if you look at this line, you're speaking, you are might be good in speaking, and you are living there, and you only communicate in English, and you hear people talking English all like front back of you. But if you're not giving the relevant content, you will not get marks. Answer key, there is an answer, there is a question, then there is answer key, and answer key needs the relevant stuff. The relevant phrase is a relevant content. So when you were doing the retail lecture, you were supposed to repeat at least 4 lines as said by the speaker. How could we prove that? If you look at this first row, which says open response, speaking and writing. So they want you to respond, right? You have to respond to the question. So you have to provide the relevant response rather than just speaking the template. Are we there? Yeah, I'm listening. Open response is speaking and writing. I think what what's related to this line? Like, I mean, That is is it that is where you have to speaking? repeat. No, see, you see the symbol speaking. So it's summarize spoken text and summarize written text. So retail lecture, Okay. Yeah. you have to repeat what the lecturer was saying. But if you look at the pen, it's summarize spoken text is basically the part of listening, but you have to write it, Yeah. isn't Okay. it? So that means you Yeah, are it not is. able to reproduce the content of enough material, with enough material, because people are so much involved in just reproducing the template that majority of the words are consumed by that template. So you have very less Mm. word count, very less time left, because in summarized spoken text you have to write at least 70 words. So I've seen templates which like almost compromises 60% of the words which are of the templates. So you're left with very less word count. So the thing is that actually you have to provide as much word count from summarized spoken text from the lecture as possible, कि ज्यादा से ज्यादा आप अल्फाज लिख रहे हैं जो भी वो लेक्चर के ही हो, ना कि टेम्पलेट के लफ्ज हो. Getting my point? So I did practice बिल्कुल. template, but there I didn't use template as such. I just tried to write the content which was said by the speaker. Just I like to speak the word more, which what told by the speaker. The lecture what was basically based on. तो कुछ कुछ तो मैंने फ्रेजेस ऐसी लाइनें लिखी जिसमें मैंने टेम्पलेट का कोई वर्ड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ वो बात जो उसने कही वो लिख दी, और बस वही लाइन लिखी पूरी पूरी. सो दिस इज सिंपल है ना कि उन्होंने आंसर सवाल पूछा है तो उसकी आंसर की भी दी होगी, तो आंसर की में आपका टेम्पलेट नहीं लिखा होगा, आंसर की में वो लिखा होगा जो शख्स ने बोला है, सिर्फ उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने बात करनी है, दैट्स इट. तो टेम्पलेट इज जस्ट अ टेम्पलेट, इट मीन्स सैम्पल, a sample that you are saying a sentence in a structured way, in a formatted way, rather than going haphazard. So this is what basically is template about. For people who want to aim for 65, template is fine if the English is not good, if they are not able to write on their own, if they think that they will be making spelling mistakes and vocabulary mistake, then templates is fine. Writing a template, they will gain some marks for 65. But if you want to go for 79, 79 means full marks. So you have to give as much content from the context itself as possible. So your जी. reproducing spoken and written language is fine because the bar is very long, so it's good with it. Extended writing means your essay is also fine, but still you need to improve a bit more in your essay. I have to see that. Tell me in essay, what did you write? The keywords or phrases or what? नहीं नहीं, मैं पूरा फ्रेज लिखता हूँ. मतलब कि जो मेरे टीचर थे उन्होंने जो मुझे टेम्पलेट दिया है Hmm. उसके अंदर बड़ी लाइनें दे आपको बतानी है. नहीं, उनका भी यही है. वो यही कहते हैं कि जो आप कह रही हैं वो Hmm. यही कह रहे हैं. असल में मसला मैं भी बताऊं कि मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट है ना, यूजुअली होता ही है कि आपका जब आपके बहुत कम आप बहुत क्लोज हो ना, तो आप बहुत जल्दी टेस्ट दो, तैयारी जल्दी करके टेस्ट दो ताकि भूलो नहीं अपनी गलतियां. तो मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जैसे कह ले कि जो नए उसमें जो आप कह रहे हैं ना, नए सिस्टम जो आ गया, उसमें मैंने दिया था दिसंबर में ये अभी. वाला दिसंबर. अब जो मैंने दी
जी जी, अभी 2023 का। मैंने भी दिसंबर में ही दिया है। अच्छा अच्छा, 2023 के दिसंबर में दिया था। अब जो है वो मैंने जो दूसरा दिया है ना, तो वो मैंने तकरीबन अभी लास्ट मंथ दिया है, या इसी मंथ दिया आई थिंक। तो वो उसमें काफी बड़ा डिस्टेंस आ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है ना अपनी गलतियों को ओवरकम नहीं कर पाया, वो रिपीट भी कर दी थोड़ी सी। क्योंकि आपने देखा होगा रीडिंग, अगर मैं शायद आपको याद भी ना हो किसके अंदर शेयर किया था मैंने, तो दोनों में 77 आए मेरे ना, जो दोनों अटेम्प्ट थी। मैं आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ। तो 77 कम है ना। दोनों अटेम्प्ट आप 90 का अटेम्प्ट करेंगे तो जाके आप 80 पे गिरेंगे। ऐसे ही है। आप 100% पेपर करेंगे बिल्कुल। ना, कुछ मिस्टेक्स आप करेंगे, कुछ एआई आपकी मिस्टेक्स निकालेगा। तो 77 सॉरी, बट इज नॉट नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। सॉरी, आई एम बीइंग वेरी हम्म। हार्श, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। नहीं सो नहीं, मैं प्राउड नहीं हो रहा, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरी जो गलती है वो मैंने उसको रिपीट किया है। तो उसकी वजह से जो है ना, मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स आप देखें, अगर अभी आपके पास मैंने आपको दिया, तो ज्यादा वो नहीं है, फर्क नहीं है, बस लग रहा है कि वही मिस्टेक्स जो है ना वो रिपीट कर गई हैं। वो आपका जो देखिए, आपके रीडिंग में इसलिए गिरे क्योंकि आपका स्पीकिंग में गिरा है। आपको पता है स्पीकिंग जो है ना का रीड अलाउड रीडिंग का पार्ट है। तो आपके स्पीकिंग में अगर अच्छे आते हैं ना, तो वो रीडिंग को भी उठा लेता आपके, और लिसनिंग को भी आपके उठाता। ठीक है। अब क्योंकि आपने वो सही नहीं किया, आपने रीड अलाउड भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं किए पढ़ा है। आपने रीड अलाउड कैसे पढ़ा था, क्या किया था? रीड अलाउड में तो कुछ क्या होता ही नहीं, रीड अलाउड में क्या होता है मतलब कि। रीड अलाउड को तरीके से पढ़ना पड़ता है उसमें। आपने जो है वो फास्ट नहीं पढ़ना पड़ता। रीड अलाउड के जो पढ़ने का तरीका है ना, नेचुरल पॉजेज वाला, वो रीडिंग में मार्क्स देता है। वो रीडिंग के सेक्शन को मार्क्स हम्म। देता है। समझ रही हैं जी बात? हाँ, मैं नेचुरली पढ़ता हूँ, जी जी, मैं नहीं, नेचुरली नेचुरल मतलब कि। पॉजेज। पॉजेज नेचुरल पॉज लेता है। जी हाँ, जहाँ पे कॉमा और जहाँ पे फुल स्टॉप आता हाँ, है, तो वहाँ पे बस पॉज लिया था। ये आपका एक मैं देख रही हूँ, रीडिंग में 77 है। फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग कैसी है आपकी? फिल द ब्लैंक, रीडिंग राइटिंग। हाँ, रीडिंग राइटिंग थोड़े बेहतर थे। मैंने अभी क्या किया था कि मैंने जो रीडिंग के जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी ये वाले नहीं, एग्जाम में। मैंने वजह। सिर्फ क्योंकि मेरे बड़े ख़राब हुए थे लास्ट टाइम में ना। जो फर्स्ट अटैम्प है, ये सेकंड अटैम्प है। जो फर्स्ट अटैम्प थी ना, उसके अंदर मेरे बड़े ख़राब हुए थे वो फिल इन द ब्लैंक्स, आपने रीडिंग राइटिंग के। फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए राइटिंग में भी गिर गए। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग का और जो है पार्ट है, वो राइटिंग में भी जाता है। ठीक है। तो वहां पे अगर आपने सही नहीं दिया, और आपको पता है अच्छा खासा परसेंटेज आता है, 20-30% चला जाता है। तो आपने फिल इन द सही बात ब्लैंक्स है। लिसनिंग के जब इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो वो उसने रीडिंग के भी आपके मार्क्स गिरा दिए और राइटिंग के भी गिरा दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो उसने लिसनिंग। जो है ना उसके अंदर बस मेरी तरफ से वही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब ये है कि बस दोबारा देना है मुझे भी। ये देखिए, दूसरा जो ये था मैंने दिया ना आपको, ये फर्स्ट टाइम था मेरा। सही। इसमें नहीं, आपको मसला सारा स्पीकिंग का है। इसमें भी देखे ना, आप अपनी स्पीकिंग लाइन देखे, लोगों की तो फुल फुल आती है ये स्पीकिंग की लाइन। आपका स्पीकिंग का मसला है। स्पीकिंग आपके बाकी चीजों को गिरा रहा है ना। आपका स्पीकिंग मुझे तो जी, रिपीट सेंटेंस कैसा है? रिपीट सेंटेंस रिपीट सेंटेंस में इस दफा हुआ था मसला, क्योंकि काफी मुश्किल आ गए थे। तो उसका तरीका होता है ना, इनिशियल्स लिखने होते हैं। आपने क्या लिखा था? जी, मैं इसी तरह से करता जो होते ना तरीके, बिल्कुल वैसे ही करता आया हूँ। लेकिन कह ले कि इस दफा थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था, कहते ना कि वो जब बंदा घर पे मैंने जो एपीयूनी वगैरह में टेस्ट देता था ना, अगर वो मैं आपको भेजूँ ना, वो पूरे पूरे आते थे उसके अंदर। उसमें अब कितने वो आते जैसे थे? कह ले ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, उसमें कितने आते थे? मेरे उसके अंदर 85 84 इस तरह से आते थे हर सारे मॉड्यूल के सारे, अंदर। और कितने दिए थे? जी, किसमें? मार्क्स कितने दिए थे? मॉक्स मैंने 2 दिए थे इसके अंदर, इस इनफ दफा वाले में 2 दिए थे, नहीं पिछले है में ना, देखो। काफी दिए। मॉक्स दो इनफ नहीं है। वो कभी कभी कहते हैं ना बिगनर्स लक। असल में जितने ज्यादा मार्क्स देंगे ना, आपको कम से कम 5 से 6 देने चाहिए थे, देखने के लिए कि क्या आपके मार्क्स कंसिस्टेंट है कि नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो उनका डेटाबेस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस की वैरायटीज डिफरेंट है। तो आप डिफरेंट एंगल हम्म। से खुद को टेस्ट कर लेते हो। इसीलिए उन्होंने ऐप यूनि में 40 उन्होंने रखे हुए हैं कि उनमें कुछ ऐसे जो इजी हैं, कुछ ऐसे जो मुश्किल वर्जन हैं। तो आप डिफरेंट से खुद को सिमिलराइज कराते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है। आपको एटलीस्ट 5 से 10 तो देने चाहिए थे। पता चलता है कि क्या आप वो परसिस्टेंट कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा।
तो अभी भी आपका तो मैं यही कहूंगी कि आप अगर अभी भी टेस्ट देने से पहले एक तो जल्दी नहीं करनी चाहिए, जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आती कि यू आर रेडी, देन यू शुड गो फॉर इट। ये जो आपने कहा था ना कि अगर आप जल्दी जल्दी दे देने चाहिए, आई टोटली डिसएग्री विद दैट फैक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे फ्रेंड वो बैक टू बैक दे रहे थे, उन्होंने 5 दिए, एंड ही इज इन पाकिस्तान। तो आप सोचे 70,000 का टेस्ट बनता है पाकिस्तान का, 3.5 लाख रुपए तो उसने सही सिर्फ बात है। पे खर्च किए। तो मैं उसको यही कह रही वही थी कि है। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते, डोंट गो फॉर इट। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अभी फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेश है। तो हर बार किसी ना किसी मॉड्यूल में उसके गिर जाते थे। तो क्योंकि आपको मॉक देने चाहिए मजीद। और आपको मैं आपने अगर मॉक्स किए हैं, अगर मेरे साथ शेयर करें, मैं देखूं आप स्पीकिंग में क्या गलत कर रहे हो। हाँ मॉक्स में, हाँ मैं ढूंढता हूँ उसके अंदर। क्या कहते हैं असल में, हम जो जो ऐप वो यूज करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अभी नहीं। जो एप यूनी का यूज करते हैं ना, तो वो नहीं शेयर्ड नहीं होता, वो जो बिक रहे होते हैं इसके ऊपर हाँ। वेबसाइट, उस वो वाला यूज करते हैं। डायरेक्ट हमें भी बड़ा महंगा पड़ता है यहाँ पे। तो इस वजह से जो है ना, वो पता नहीं अब जिससे खरीदा है उसने कहाँ से कहाँ कर दिया हो। नहीं तो फिर भी अम, वो आपको पासवर्ड देगा, तो वो आपका आपका वो आ जाएगा। खैर उसमें आ, आ जाता है। तो मुझे ना आपके जो मुंह हाँ से मैं ढूंढता तुम्हारा हूँ। लग रहा है वो स्पीकिंग का लग रहा है। आई डोंट नो आप रीड अलाउड कैसे करते हैं, पढ़ते हैं। मैं अगर एक रीड अलाउड शेयर करूँ, मैं देखूँ आप कैसे पढ़ते हो। तो हाँ मैं शेयर करता हूँ। अभी स्क्रीन अभी तो फुल। देखिए, मैंने आपको एक शेयर किया है। मुझे पुराना वाला मिला है, पहला वो सेकंड सेकंड अटेम्प्ट जो है ना, उसके अंदर देखें एक में तो फुल है नहीं वो मुझे वो चाहिए। एक्सटेंडेड। एक सेकेंड, मुझे ना वो लिंक चाहिए, जो मैं पूरी फुल लिंक चाहिए मुझे। लिंक चाहिए, अच्छा अच्छा। हाँ, लिंक चाहिए। मैं अपने अकाउंट के अंदर भी मैंने काफी किए होंगे, हाँ मैं हाँ, वो वही दे दिखा सकता दें, हूँ वही आपको। दिखा दें, वही शेयर करें, ताकि मैं वो देखूं कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपका सारा मसला जो है ना, बाकी ठीक है, स्पीकिंग का आ रहा है। हालांकि स्पीकिंग में तो लोगों के 90 आते हैं। नहीं सही बात है, बिल्कुल सही कह रही है, 90 आते हैं। क्योंकि वो आपकी ब्लू लेकिन लाइन, मसला पता नहीं है। हाँ ब्लू लाइन ही हाँ क्लियरली बता रही है ना कि आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। सही बात है, कुछ ना कुछ तो है। उस चीज को ठीक करें तो टेस्ट देने जाएं। अगर आप मुझे वो दिखाएंगे ना, तो मैं आपकी वो गलती ठीक करा लूँ, फिर आप प्रैक्टिस करें, फिर देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। क्योंकि मैं ऐसे ना लोगों से पैसे नहीं लेती। मैं उनको एक डेमो देती हूँ, उनकी वीकनेस बताती हूँ, उनको कहती हूँ जाएं इम्प्रूव करें। जब वो इम्प्रूव करते हैं, अगर उनको इम्प्रूवमेंट लगती है, तो ही मैं उनसे क्लास लिया उनको क्लास देती हूँ, वरना नहीं देती। मतलब वरना ये अच्छा। सेंस में कि आई एम नॉट ग्रीडी फॉर मनी। कि हम्म। नहीं, हर हाल में मुझे आप मतलब मुझे से ट्यूशन लें। दैट्स व्हाई सेड कि आप पहले वो ले लें, डेमो ले लें। मिला आपको? अच्छा जी। जी जी, मैं सुना सुना, मैं असल में वो अपना ढूंढ रहा हूँ, मैंने जो किए हुए हैं ना। हाँ, तब तक चले मैं आपको हाँ। ऐप यूनी का क्वेश्चन कराती हूँ, देखते हैं आप क्या करते हैं। बिकॉज हमारा टाइम हो जाएगा, जूम आउट हो खत्म हो जाएगी ड्यूरेशन इसकी। अच्छा अच्छा, ये मुझे मिल गया, मैं एक बार भेज रहा हूँ। भेजे भेजे मैंने। ठीक है, आ गया होगा। नहीं आया वो। तो इसमें ही किया मैंने, टीम्स मीटिंग के अंदर डाल दिया है। जूम में? अच्छा, मैसेज में। जी जी। रीड।
एक मिनट में खोल रही हूँ इसको। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। और one second। Bookkeepers are strategic partners in financial management. They possess a deep understanding of financial systems, risk management, and regulatory compliance. Bookkeepers provide valuable insights into financial performances, contribute to strategic planning, and assist. अच्छा, इसमें सब एक तो आपकी आप ना वो जो कर रहे हो बाकी चीजें ठीक है, ये जो स्ट्रेस दे रहे हो ना, ये ना दें। नेचुरली बात करें, आप सुने, खुद सुने आप। देखिए, हम गोरे नहीं है। पहली बात तो रीड अलाउड में आपने किसी चीज को इम्फेसाइज नहीं करना। हम किसी बात को ना इम्फेसाइज नहीं कर रहे कि जी आपने ये करना है, ये करना है, यानी कि किसी को फोर्स नहीं करेगा आपने बुक कीपिंग करनी है, दिस एंड दैट, ब्ला 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 ब्ला। यू जस्ट नीड टू टॉक इन अ नेचुरल टोन, और आपका टोन नेचुरल नहीं, हम जैसे नेचुरली बात करते हैं। आप खुद सुने अपनी रीडिंग और फॉलो करें, और जो रेड वर्ड्स हैं, द स्क्रीन इज विजिबल राइट। जी हाँ। आप रेड वर्ड्स को सुने, आपने बिला वजह पे उन पे जोर डाला हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ System formulation of financial policies, है। ये नहीं करना है आपने। आपने नेचुरल टोन में रहना है। issued performances, rationing, and assistance. ये पूरा जाएगा मुझे लगता है। हाँ, Bookkeepers are strategic आर क्यों? partners. आर नहीं, बुक कीपर्स आर क्यों, मतलब वाई आर यू स्ट्रेसिंग ऑन इट, इसको खींच क्यों रहे हैं आगे? Financial management. They possess a deep अब दे understanding पोजेस of नहीं, दे financial पोजेस, systems, सिंपल दे पोजेस। ठीक है, आपने कैसे पढ़ा उसको? possess a deep understanding of financial systems, risk management, and regulatory compliance. Bookkeeper provide valuable insights into financial performances, contribute to strategic planning, and assist in formulation of financial policies. द आपने ना, आपका क्लियर नहीं था। एक तो Formulation of financial policies, द, performances, ठीक है, contribute to strategic planning, and assist in formulation of आपका financial द policies. सुनाई दिया, मुझे तो नहीं सुनाई दिया, दोबारा सुने। तो जल्दी के चक्कर में लफ्ज खा रहे हैं। Planning and assist in formulation of financial. हाँ, इन द नहीं पढ़ा आपने, मतलब थोड़ा सा अपनी थोड़ी स्पीड स्लो रखनी है। असल में एड ट्यूनिंग का ये है, आप स्पीड से बोलोगे आपको मार्क्स देगा, नहीं बोलोगे तो नहीं देगा, मगर जल्दी में आपके लफ्ज Planning and assist in ऑडिबल नहीं है। financial performances, contribute to strategic planning and assist in formulation of द financial कहा है, क्लियर नहीं है। policies. They collaborate with stakeholders ये, across the organization. ठीक है, तो थोड़ा सा ये कुछ आपने वहाँ ऐसा किया है कि आपके लफ्ज ने क्लियर सुनाई नहीं दिए। आपके प्रोनाउंसिएशन में मसला नहीं है, आपकी फ्लुएंसी में भी नहीं है, फंबल नहीं कर रहे, आपके पॉजेस भी नेचुरल है। द ओनली थिंग इज वर्ड्स कुछ क्लियर नहीं आ रहे क्योंकि जल्दी के चक्कर में है। Risk management and regulatory compliance. Bookkeeper provide valuable insights into और वो की रिटेल लेक्चर्स वगैरह कुछ पढ़े हैं? रिटेल लेक्चर, हाँ जी वो भी हो गया, मैं दिखा पाऊँ। दिखाएं, वो दिखाएं, क्योंकि आपका रिप्रोड्यूस में मसला आ रहा है। रिटेल लेक्चर भेजो। रिटेल लेक्चर का जो है ना, ये मसला है ही, मुझे मसला मुझे लग रहा है कि मतलब कि सही कह रही है उसका टेम्पलेट, क्योंकि उन्होंने भी हमें यही बताया कि जो है ना रिटेल लेक्चर के अंदर अपने वर्ड्स कीवर्ड्स डालने हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8 कीवर्ड्स डालने हैं। फ्रेजेस, फ्रेजेस, कीवर्ड्स नहीं, फ्रेजेस। कीवर्ड नहीं जाएगा, फ्रेजेस जाएगा। रिटेल लेक्चर में, डिस्क्राइब इमेज में, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में, एसे में फ्रेजेस जाएंगे, कीवर्ड्स नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा असल मुश्किल में बना रहे हैं। असल में ना फ्रेजेस की वजह मैं ये कहूंगा ज्यादा कि वहां पे मैं नर्वस हो जाता हूँ। रिटेल लेक्चर के अंदर ना बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं शुरू से लेके अब वो तक। इसीलिए आप उसको इतनी कैसे करते हैं रिटेल लेक्चर में, वो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये बताएं मुझे, फिर मैं बताती हूँ क्या गलत कर रहे हैं। मैं अटेम्प्ट ऐसे करता हूँ कि उसके पहले जब वो कह रहा होता है, जब लेक्चर चल रहा होता है उसके सारे वर्ड्स अपने पास कॉल लिख लिए एक जगह पे। नहीं, वो ये नहीं कोई तरीका। आठ जितने नहीं नहीं उन्होंने कोई आठ नहीं नहीं 7-8 ये जो है ना। देखिए, वर्ड्स नहीं लिखने। वो कह रहा है रिटेल लेक्चर, आपने लेक्चर देना है। लेक्चर कभी आप कीवर्ड्स में नहीं देते हो, आप एक जुमला बोलते हो, फ्रेज बोलते हो, राइट। उसकी ट्रिक ये है सिंपल, कि जी आप उसको सुने फॉर 5 सेकेंड्स, जस्ट 5 सेकेंड्स, और वो 5 सेकेंड्स लिख लें। ठीक है, 5 सेकेंड सुना और उसको लिखें। मीनवाइल जब आप लिख रहे हो तो डेफिनेटली वो बोले जा रहा है, वो आपके मिस हो रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। 5 सेकेंड्स में आप लिख लो, ठीक है। फिर 5 सेकेंड उसको सुने, जो बात सुनी वो लिख ली, क्यों मैं अभी बताती हूँ। फिर 5 सेकेंड सुने,
फिर 5 सेकंड्स लिखें, फिर 5 सेकंड सुने ना, 5 सेकंड से ज्यादा सुनेंगे ना 5 सेकंड से ज्यादा लिखने में लगाएंगे। आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है 5 सेकंड्स में फ्रेजेस लिखें, ठीक है। लिखने वाली बात इसलिए इसलिए कही जा रही है 5 सेकंड्स के लिए कि आप एटलीस्ट जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ना वो नोट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स लिखते हो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाती है, वो फिट नहीं बैठती उसके अंदर, टेम्पलेट के अंदर। ठीक हो गया। तो अच्छा, फ्रेजेस में ठीक एटलीस्ट ये है। होगा कि अगर वो एक्टिव फॉर्म में बोल रहा है तो आप एक्टिव फॉर्म में ही लिखोगे, अगर वो पैसिव फॉर्म में बोल रहा है, अगर वो पास्ट टेंस में कह रहा है या प्रेजेंट फॉर्म में कह रहा है। वैसे भी तो कोशिश करें पास्ट टेंस में ही ऐसे लिखें, क्योंकि ये लेक्चर लिखें बोलें, क्योंकि हमें फिर हैज एंड हैव का इशू हो जाता है। मगर ट्राई दिस ट्रिक, जब आप 5 सेकंड वाली सुनेंगे तो आपके एटलीस्ट 4 फ्रेजेस आप लिख लोगे। एटलीस्ट ट्राई टू राइट 4 फ्रेजेस, 4 फ्रेजेस लिखें और उनको पढ़ें, ठीक है। अगर आप देखते हो कि जी फ्रेजेस लिखने के बाद भी टाइम बचता है, कोई बात नहीं, उन फ्रेजेस को आप दोबारा बोल लें, मगर दे शुड बी एटलीस्ट 4 फ्रेजेस, नॉट कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स का सही दौर सही। चला गया। आपने 2020 में दिया, आपके मार्क्स इसलिए अच्छे हैं कि तब इतना नया नया आया था ना, तो लोग सिर्फ टेम्पलेट ही लिख के आ जाते थे, उनके मार्क्स आ जाते थे। ठीक है, आपने देखा है ना हर बार कितनी इंप्रूवमेंट करते हैं, वो क्वेश्चंस ला रहे हैं, उस पर ट्रायल करवाते हैं, फिर वो हटा देते हैं, फिर क्वेश्चंस लाते हैं, फिर उस पर ट्रायल क्वेश्चंस डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। क्यों गए हमें वो चीजों के मोर एडवांस कर रहे हैं उसको ना, वरना उनका क्या पड़ी है। बच्चे तो पैसे दे रहे हैं, टेस्ट दें, पास करें और निकले, बट दे कीप रिवाइजिंग द स्टफ, इसको पीटी को करते रहते हैं। तो पहले ही था, मेरे खुद फ्रेंड्स ने दिए, कहते हम तो गए, मैं प्रैक्टिस करी थी, मुझे कह रहे थे क्या आप प्रैक्टिस किए जा रही है किए जा रहे, हम तो गए एक दिन तैयारी की, दूसरे दिन दे के आ गए 90, उसने 2020 में दिया था। तो तब ये था, सही है। फिर इतना पैसे जब टाइम लोगों ने सिर्फ कीवर्ड्स डाले। आप इवन जो इतने यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं वो खुद अब ये कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि जी कीवर्ड्स डाले डाले एक्स्ट्रा, फिर अब कीवर्ड्स भी काम नहीं कर रहे, अब फ्रेजेस काम करते हैं पूरे पूरे। ऐसे में पूरी पूरी लाइनें, एटलीस्ट 5-6 लाइनें आपने खुद से लिखनी है, खुद से मीन्स के टॉपिक से रेलिवेंट। अब टेम्पलेट में जो लफ्ज अल्फाज होते हैं ना, उसमें कोई ऐसा अल्फाज नहीं होता जो ऐसे से रेलिवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मीडिया की बात होगी, मेरा मीडिया का ऐसे आया था, अगर मैं टेम्पलेट लिखती तो उस पूरे टेम्पलेट में लफ्ज मीडिया कहीं नहीं था। ठीक है, तो इश्यू ये है सारा कि अब आपको फ्रेजेस अच्छा, की वो ज्यादा आ गई है डिमांड। एक सेकेंड, ये आपका जो है ना, ये भी खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। नहीं ये असल में थोड़ा गलत कोई वो बात कर नहीं, दिया है कोई मैंने। बात नहीं, तो गलती से तो हमें पता चलेगा ना कि क्या गलत किया है। नहीं नहीं ये ये मेरा नहीं है असल में, अच्छा ये मेरी वॉइस का है। मैंने अच्छा। उन्होंने दिया था ना, तो उन्होंने प्रैक्टिस, हालांकि उनकी प्रैक्टिस ज्यादा उसके अंदर जो है ना आया हुआ है, ज्यादा अच्छा आया हुआ है। तो आप उनसे सीखे फिर। मेरे नहीं नहीं उनका जो है ना ये वाला सिर्फ क्वेश्चन अच्छा था, उन्होंने दे के जान छुड़ाई है। एक मिनट हो गया, मैं अपना ढूंढूं जरा। हाँ वैसे बात आपने सही की है, क्योंकि उसके 76 आए हुए हैं, जबकि मैंने ऊपर 2 बार दिया हुआ है, और मेरे 50 40 इस तरह से आए हुए रिटेल लेक्चर में। हाँ, तो आप रिटेल लेक्चर में कंटेंट वो उसको जो बात फ्रेज कहता है 5 सेकंड सुने फिर लिखें, मतलब नहीं नोट कर ये मैं लें। आपको देता हूँ ना, ये बड़ा मसला करता है मुझे ना बहुत ये असल में मैं इसमें बताऊँ कि मैं जो है मसला है ना मेरे टीचर का ही है, कि पुराना लेक्चर में वो दे देते हैं ये टेम्पलेट, और मैं उनको बोला भी था भी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम जो है ना तुम गलत कर रहे हो, ये सही है। नहीं तो गलत नहीं, तो आप गलत अगले बंदे को बताओ ना कि उसकी गलती है, अगर वो कर भी रहा है तो उसको ठीक तो करवाओ। मैंने बताया था उनको 2 बार, उन्होंने कहा भाई क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम अच्छा वहीं पर हो, ऑलमोस्ट वहीं पे हो, तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। मुझे पता है, क्योंकि भाई अब एक बंदा एक चीज पे कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, फिर वो बोलता है कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फीडबैक तो ये चाहिए, वाली बात आ गई है। फीडबैक तो चाहिए होती है। ये बेशक है भाई। आपका क्या है, इसीलिए रिटेल लेक्चर, जी जी ये देखिएगा। कंटेंट है When I get प्रोनाउंसिएशन। discuss the subject of image in order to retell properly, I must focus on ये Venus. आपने Right? मुझे Also ये gives बात बताएं, ये आपकी ट्रेन छूट रही है। खुद सुने, कोई ऐसी खुद सुने, अपनी हाँ बात सुने, नहीं आपको समझ आ रही है आप कह क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, सुने। information about science. Well, in my opinion, the speaker not only mentioned measurement but also gives information about mission. I had my कोई तुक्कु बन When रही I है get आपके discuss the बात की। subject of image in order to retell properly, I must focus on Venus. But it also gives some useful information about science. Well, in my opinion, the speaker not only mentioned measurement but अच्छा also gives एक information चीज और मुझे बताएं, आप ये नहीं तो आपको कंटेंट पे मार्क्स देंगे। अब गिनते हैं, आप मेरे साथ गिने कितने अल्फाज ऐसे हैं जो आपके टेम्पलेट के हैं, ठीक है। बट दे डिड 1 2 3 4 5 6 गिनते जाए ना,
मैं बोल रही हूँ गिने, बट दे डिड डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ द इमेज इन ऑर्डर टू प्रॉपरली आई मस्ट फोकस ऑन वेन्स बट ऑल्सो गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये पूरी लाइन में कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो लेक्चर के? वो आपको कंटेंट के मार्क्स देगा? ऐप यूं नहीं तो दे देगा, पियर्सन नहीं देगा, क्योंकि ये पूरी लाइन आपने लिखी है। इन अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ड्स एंड नॉट अ सिंगल वर्ड इज अबाउट द टॉपिक, राइट? आगे चलते हैं। अबाउट साइंस, चलो एक, अब जाके एक वर्ड आया है जो टॉपिक का है, जो कि शायद साइंस है। इन माई ओपिनियन द स्पीकर में नॉट ओनली मेंशन्ड, ठीक है, अब तो इन माई ओपिनियन से लेकर कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, फिर 6 अल्फाज के बाद आपने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, मेजरमेंट, जो आई थिंक लेक्चर का। वर्ड ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, फिर 1 2 3 4 5 वर्ड के बाद एक वर्ड आपने लिखा है जो लेक्चर का है। आई हैड मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट सच एस, ठीक है, फिर 5 वर्ड्स के बाद सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्पेसक्राफ्ट, 2 वर्ड्स आपने लेक्चर पे लिखे। आई पर्सनली बिलीव ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर 5 वर्ड्स के बाद आपने शायद इम्पोर्टेंट लेक्चर का वर्ड होगा। ऑल्सो शुड मेंशन ऑल्सो लव, लव शायद एक लेक्चर का होगा। अफ्रेड टाइम्स, ठीक है, ओवर। तो आप खुद गने आपने कितने अल्फाज लिखे? आप कीवर्ड की बात कर रहे थे ना, हाउ मेनी कीवर्ड्स डिड यू राइट फ्रॉम द लेक्चर? आई थिंक सिर्फ 7 है। मेजरमेंट, मिशन, ऐसे ये 7 ही होते हैं उनके, वो यही कहा था, 7 जो है ना, 7 फिलिंदा ब्लैंक है, उसमें 7 वर्ड डालना है। नहीं 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 नहीं, हाँ देखिए वो रिप्रोड्यूस कह रहा है। अब आप अपनी ब्लू लाइन देखें, आप ही की ब्लू लाइन देखते हैं ना, ये लेक्चर है आपकी, ब्लू लाइन देख रहे थे, ये लेटेस्ट टेस्ट की। आप देखिए ये रिप्रोड्यूस रिस्पॉन्स, ये पहली लाइन क्या कहता है? ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आपने इसको रिस्पॉन्स जितना दिया है, 7 लफ्ज है, तो उसने 7 लफ्ज जितना आपको जस्टिफाइड लाइन ब्लू दी है। तो ये कौन से मेरे राइटिंग के भी काउंट हुए क्या रिटर्न लेक्चर हाँ में? ये दोनों है ना, ये देखिए स्पीकिंग और राइटिंग, अच्छा अच्छा, ये स्पीक राइटिंग स्पीकिंग, अच्छा समराइज स्पोकन टेक्स्ट, हाँ। अच्छा, और सही है सही है। ये जो स्पीकिंग है ना, ये लेक्चर रिटेल लेक्चर है। तो भाई आपने 7 अल्फाज दिए, उसने आपको 7 अल्फाज में जितने जस्टिफाइड ब्लू लाइन बना के दे दी कि जी भाई इतना ही आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, समझ गया। तो टेम्पलेट मैटर नहीं करता, ठीक है। लोग पागल हुए हुए होते हैं, और जब मार्क्स नहीं आते, सॉरी टू से, तो बताऊं क्या कहते हैं बच्चों को? ये कहते हैं कि जी टेम्पलेट काम नहीं कर रहा। वो गॉड गॉड से टेम्पलेट का कंटेंट कंटेंट की नहीं है, उनके आंसर की नहीं है। मतलब मैं खुद टीचर हूँ ना, तो मैं अगर सवाल पूछूंगी, हम्म, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ आप मुझे रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे, मैं आपको मार्क्स दे दूंगी। मुझे कहानियां नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ 5 मार्क्स सही है। का क्वेश्चन है, तो मुझे 5 रेलिवेंट लाइंस लिख के दे दे, मैं आपको मार्क्स दे दूंगी, मुझे कहानियां नहीं चाहिए। अंडरस्टूड सी बात है वो। ठीक है, सही है। तो वो खुद कह रहा है रिप्रोड्यूस, तो क्या लेक्चर, रिटेल लेक्चर का मतलब क्या है? जो उसने लेक्चर दिया है वो आप रिटेल करें। अब मेंशनड ही आल्सो सेड आई थिंक सो, वो आपसे पूछ ही नहीं रहा ना, आपसे वो पूछ रहा है कि उसने क्या कहा, एप्पल के बारे में क्या कहा, स्पेस के बारे में उसने क्या कहा। तो एटलीस्ट 5 फ्रेजेस तो कम से कम आप कैच करके उसको वापस रिप्रोड्यूस करें ना। ठीक है, मतलब इसके अंदर अगर थोड़ा सा फ्लुएंसी का भी इशू, क्योंकि अब देखें फ्लुएंसी का इशू तो आएगा, क्योंकि वो फ्रेंडसी तो में आप हमने, नेचुरल बोले हैं, नेचुरली बोले हैं, ठीक है। मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ, आप उसको मुझे रीड करें, मैं देखूँ कैसे बोलते हैं क्योंकि आप। अब जो 5 वर्ड आप कह रही हैं उसको पकड़ के फिर हमें वापस देने हैं उनको, तो हाँ, वो तो फिर उस तरह से नहीं बोल पाएंगे हम नहीं जो तो हम आप याद सेंटेंस किए में हुए ही फिट बोलते हैं। करो, जहाँ सेंटेंस में कीवर्ड फिट कर रहे हो ना, वहाँ लाइन फिट करो टेम्पलेट में। अच्छा अच्छा, हाँ ये कहना चाह रही हूँ। तो टेम्पलेट अगर आप फिर टेम्पलेट को थोड़ा कंसाइज कर लें, छोटा कर लें। अच्छा ठीक है। मैं ठीक है, अपना समझ टेम्पलेट गया मैं, आपके साथ उसके शेयर कर दूंगी वो। कंटेंट ज्यादा डालना है। हाँ अब आप बात समझे ना, कि आपने जो उसका कंटेंट है एक्चुअल चीजों का, वो आपने बेसिकली प्रोड्यूस करना है। वो उसको वापस देना। अब मैं आपसे पूछूं कराची के बारे में बताए, आप कह रहे हैं आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू दैट कराची आई हैव इज ऑल्सो अ वेरी बिग सिटी। तो इतनी देर के बाद आपका एक जवाब आता है मेरे पास। सही सही। देखते हैं, मैं आपको ना एक पैराग्राफ देती हूँ, आप उसको पढ़ें। फिर मैं देखती हूँ कि जी, क्योंकि मैंने भी दिसंबर में ही दिया है, तो मैंने क्योंकि लेटेस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे दिया है, तो हमें फिर आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपका स्पीकिंग का इशू है, स्पीकिंग बाकी चीजें गिरा रहा है, बाकी नहीं है।
स्पीकिंग का इशू कहाँ, मतलब स्पीकिंग का देखें सिर्फ 5 कम हो स्पीकिंग का रहे हैं आप मॉड्यूल देखें अगर। स्पीकिंग का मॉड्यूल ठीक करें, 2-3 मॉक्स करें स्पीकिंग के। ये आपके मॉक्स नहीं तो फ्री के ये कूपन्स तो देता है ना, ये रहा ना नीचे, ये रहे ना फ्री जी कूपन्स। नहीं, मेरे पास वो है अपना, हाँ हाँ, तो आप मैंने खरीदा हुआ है अभी। स्पीकिंग का एक मॉड्यूल करें अभी। खैर मुझे ये पैराग्राफ पढ़ के बताएं, मैं देखूँ आप पढ़ते कैसे हैं, क्या करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, क्योंकि आप जिस तरह पढ़ रहे हो ना, आपको खुद नहीं समझ आ रही थी, आप पढ़ क्या रहे हो। ओके, रीड। In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diapers liners which contain special ठीक है, polymers known as रुक super जाए, absorbers. रुक जाए, आपके नेचुरल प्रोसेस ठीक नहीं है। देखिए जब कॉमा है ना, जैसे एक नॉक होता है ना, एक दफा हम नॉक करते हैं, हम्म एक नॉक जो था स्पेस में, फुल स्टॉप पे 3 दफा जैसा स्पेस है। आपने जर्मनी वाले के बाद तो थोड़ा स्पेस लिया था, पोज लिया था, तो मैं कुछ नहीं कहा था। मगर डायपर लाइनर्स के बाद जो कॉमा है, इस पे आपने वो पोज नहीं लिया। दोबारा पढ़ो। इन जर्मनी In Germany, over 100,000 in Germany, over 100,000 tons जर्मनी के of बाद diapers थोड़ा are सा पोज discarded लें, जितना एक नॉक हम दरवाजे पे करते हैं ना, इतने नॉक जितना आप पोज लें। कितनी देर लगती है नॉक करने each. इन जर्मनी? In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. बिल्कुल ऐसे ही है। बस फुल स्टॉप पे थोड़ा सा और लंबा लेना था। अब आपके देखें, Hmm. ट्रेन नहीं भाग रही, ट्रेन नहीं छूट रही, Mhm. मैं खुद पढ़ा, राइट। सो यू आर नॉट, Mhm. ऐसा नहीं है कि जब भाग रहे हो। नेचुरल पोज आ गया, नेचुरल पोज जब देंगे ना, तो ये आपको रीडिंग में मार्क्स डालेगा, वरना स्पीकिंग में तो ये सही है। आपके कंटेंट के मार्क्स देगा, प्रोनाउंसिएशन के देगा और स्पीड के देगा। मगर जो नेचुरल पोजेस वाली बात हो गई, वो आपकी रीडिंग में देगा। और अगर आपका लफ्ज जो है वो क्लियरली सुनाई दे रहा है, वो भी रीडिंग में मार्क्स डालेगा। ठीक है, अच्छा एक डिस्क्राइब इमेज देख लेते हैं, उस प्रॉब्लम में देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब इमेज के अंदर तो कंटेंट वगैरह मैं नहीं डालता अभी भी। यही तो गलत बात है, यही तो गलती है। चलो लेकिन क्या करते हैं, करें इसको। अच्छा ये थोड़ा क्लियर नहीं है, इसका लेटर वो छोटा है, मैं दूसरा देख लेती हूँ इससे पहले कि हमारा ना टाइम आउट हो जाए। चलिए सिंपल वाला देख लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, कोई भी हो, एक ही, मैं वो इसी का करता ये था उसमें वहाँ पे राइटिंग एक छोटी ही। थी। एक second। नहीं, मुझे नजर तो आ रहा है वैसे क्लियर। चलिए ये कर देंगे, ये इजी है। अब इसको बताएं। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ बोलो। हाँ हाँ। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, इट गिव्स सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आवाज अबाउट चली द गई टॉपिक आपकी, व्हिच इज डिस्क्राइब। आवाज हाँ चली जी, गई, आवाज चली गई, अच्छा है चली क्या। गई। There कर is a दिया। very interesting image in front of me. It gives some useful information about the topic which is described image. The image not only gives information about the highest value, which is 75, but also gives information about the lowest value, which is 1. मतलब अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, टाइम नहीं हो नहीं, गया, ठीक है लेकिन ठीक है इसी ठीक है, तरह यही मैं इसीलिए तो कहते हैं ना टेम्पलेट मैटर नहीं करते, कि आप देखे ना बोताज हो गए टेम्पलेट के। फिर आगे और पढ़े बस। I can see so many I can see so many important words and figures like United Kingdom and 45%, but I think 5% is the most important. I would love to go in more detail about these, but I think my time is over. ठीक है, तरह से ऐसा नहीं है, ये इस तरह नहीं है। देखिए वो कह रहा है डिस्क्राइब इमेज, तस्वीर को डिस्क्राइब करो जो आपके सामने है। तो आप जो कह रहे हैं ना, आई थिंक ये इस तरह नहीं है। सबसे पहले आप मुझे देखें, मैं इसको कैसे करती हूँ। हियर इज एन इंपॉर्टेंट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अक्रॉस कंट्रीज। आपने टाइटल नहीं पढ़ा।